Welcome students. Today we will discuss the poem The Tale of Custard the Dragon, written by Ozen Nash from 10th class. This is a comical poem and it is about a lady named Belinda and her four pets. Belinda lived in a little white house with her four pets. The name of her pets are Ink, Blink, Mustard, and Custard. Ink, Blink, and Mustards are always boast of their bravery, and they think Custard the dragon a quardish. Belinda gives importance to Ink, Blink, and Mustard, and she always tickled Custard. So Custard always cry for a nice safe cage. In the first stanza, the poet says that Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a black grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Trulio little pet dragon. In the first stanza, the poet described that Belinda lives in a little white house with her four pets, uh, a little black kitten here mean a young one of cat, little gray mouse, and the name of the other pet is gray mouse, and little yellow dog, and a red wagon here means a vehicle used for transporting goods. Real mean in real, trulio mean truly, little pet dragon, and the fourth is dragon. Dragon mean a flying snake. In the second stanza, the poet says that now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was Sharp as Mustard, but the dragon was a Quartz and she called him Custard. The name of the little black kitten was Ink. The name of Belinda's little black kitten was Ink, and the name of the little grey mouse was Blink, and the name of the little yellow dog was Mustard, and the name of the dragon was Custard. In third stanza, the poetess talk about Custard the dragon had big sharp. In this stanza, the poet talks about Custard the dragon. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Rilio daggers on his toes. And the poet says that the dragon Custard has big sharp teeth and spikes. Spikes here mean thin layer of like nails, कीलें लगी हुई छोटी छोटी पतली त्वचा, ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसकी जो त्वचा है वो कैसी दिखती है, जैसे उसके ऊपर स्पाइक्स कीलें लगी हुई हैं, स्केल्स अंडरनीथ, और उसके अंदर जो है डिज़ाइन है, स्केल्स हियर मीन डिज़ाइन है, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, हिज माउथ इज लाइक ए फायर प्लेस, उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है, चिमनी फॉर ए नोज, उसकी नाक जो है वो एक चिमनी की तरह है, एंड ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और इन रियल एंड ट्रूली हिज टोज, उसके जो टोज हैं, जो नाखून हैं, वो लाइक डैगर्स, वो डैगर्स की तरह हैं, डैगर्स मीन नाइफ, छुरा, नाइफ्स की तरह हैं. इन फोर्थ स्टेंजा द पोएटेस सेज दैट Belinda was as brave as barrel of bears, and Ink and Blink chased line down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. In this stanza, the poet compares the bravery of Belinda as barrel of bears. Belinda is as brave as barrel of bears. जैसे कि कोई भालुओं का भरा हुआ ड्रम है तो उतनी बहादुर बिलिंडा है. इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स. इंक और ब्लिंक जो हैं, जो लिटिल किटन है और जो येलो जो ग्रे माउस है, वो स्टेयर से लाइंस का पीछा करते हैं. उनकी बहादुरी को कंपेयर किया गया
किया गया है लाइन से, जो कि वो स्टूडियो में लाइंस को चेंज करते हैं, पीछा करते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज। रेज हियर मीन एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम एंगर। तो मस्टर्ड वाज एज ब्रेव, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड को जो है इतना बहादुर बताया गया जैसे कि क्रोध में आया हुआ कोई टाइगर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज एंड, परंतु कस्टर्ड जो है वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है। इन फिफ्थ स्टैंजा द poet talks about Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival। बिलिंडा जो है वो उसका जो पेट है कस्टर्ड, उसको हमेशा टिक्कल करती रहती है। टिक्कल मीन उसको गुदगुदाती रहती है। सी टिक्कल अनमर्सीफुल, और उसको अनमर्सीफुल तरीके से वो गुदगुदाती है, अपने हाथों से जो है उसको तंग करती रहती है, उसको टिक्कल करती रहती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम, और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं वो उसके साथ रूडली बिहेव करते हैं। रूडली मीन इन ए बैड मैनर, कॉल्ड हिम परसिवल, और उसको परसिवल कहते हैं। परसिवल मीन बिहेव लाइक ए चाइल्डिश मैनर, जो आदमी चाइल्डिश मैनर की तरह बिहेव करता है उसको परसिवल बोलते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग एट द लिटिल रेड वैगन, और वो सब जो है एक छोटे से जो बिलिंडा की रेड वैगन है उसमें जो है हंसते हुए बैठ जाते हैं। एंड एट द रिलियो ट्रूलियो क्वार्डी ड्रैगन, और ड्रैगन को वो जो है क्वार्डिस बोलते रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। तो इस पोएम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली जो है रिम स्कीम, जो पैटर्न है पोएम का, जो उसका रिम स्कीम है वो है ए बी, क्योंकि हाउस जो है, हाउस किसे राइमिंग करा है, माउस से। हाउस को हम ए से डिनोट करते हैं, और वैगन ड्रैगन, वैगन किससे राइमिंग करा है, ड्रैगन से, तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो ए बी जो है इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है, जो पैटर्न यूज किया गया है। सेकंड स्टैंजा जो है, सेकंड स्टैंजा में जो हमारी जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है वो है सिमली। सिमली, सिमली क्या है, सिमली जो है जब हम दो इनडायरेक्टली हम दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ सिमली होती है। जैसे इन थर्ड लाइन, येलो डॉग वाज एज शार्प एज मस्टर्ड, तो इसमें येलो शो को जो है मस्टर्ड के शार्प होने से कंपेयर किया गया है। तो इस लाइन के अंदर जो है वो सिमली का यूज किया गया, और जो पैटर्न है वो ठीक उसी प्रकार ए, ए इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। इंक को हम ए से डिनोट करते हैं, इंक जो है राइमिंग कर रहा है ब्लिंक से, बी, तो बी मस्टर्ड राइमिंग कर रहा है कस्टर्ड से, तो इसको बी से डिनोट करते हैं। तो ए बी जो है स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है। इन थर्ड स्टैंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है मेनली वो है इमेजरी। इमेजरी क्या है, इमेजरी जो है एक यूज द वर्ड्स फॉर मेकिंग इमेज इन द माइंड्स टू डिस्क्राइब आइडिया और सिचुएशन। जब हम कोई आइडिया या सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिससे उस करैक्टर की इमेज बनती है, तो उसमें उसको जो है इमेजरी बोलते हैं। जैसे इसमें जो है वो माउथ लाइक ए फायर प्लेस, जो ड्रैगन का माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है। चिमनी फॉर ए नोज, डैगर्स ऑन हिज टोज, इन लाइनों के अंदर इमेजरी का यूज किया गया है। और जो पैटर्न है इसमें वो है ए बी, ठीक पिछले स्टैंजाज की तरह। तो ए को डिनोट किया गया है टीथ अंडरनीथ, टीथ राइमिंग करा है अंडरनीथ से, तो इसको ए से डिनोट किया। नोज टोज, नोज जो है वो राइमिंग कर रहा है टोज से, तो इसको बी से डिनोट किया। तो ए बी जो है इसमें राइमिंग स्कीम है। स्टैंजा नंबर 4 जो स्टैंजा है उसका भी जो पैटर्न है फुल ऑफ बियर्स स्टेयर्स, ए से डिनोट किया बियर को, वो राइमिंग कर रहा है स्टेयर से। रेज को बी से डिनोट किया, वो कर रहा है बी से। तो इसमें जो पैटर्न है ए बी, और इसमें जो यूज की गई है
जो इमेजरी यूज की गई है वो पोलिटिकल डिवाइस वो है सिमली। शिमली, एज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स। तो बिलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स, इस लाइन के अंदर जो है सिमली का यूज किया गया है। ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज मस्टर्ड के बारे में कहा गया है, तो इस लाइन के अंदर सिमली डिवाइस का यूज किया गया है। और जो पैटर्न है स्टैंजा का ए बी बी। इन फिफ्थ स्टैंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेज यूज की गई है वो भी यूज की गई है जो है सिमली। और जो पैटर्न है वो है ए बी बी। रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, क्वार्डली ड्रैगन। तो आज की इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट 5 स्टैंजा थे उनको डिस्क्राइब किया। हम अपनी अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट 5 स्टैंजाज को यूज करेंगे। दिस इज ए लॉन्ग पोएम, इट हैज़ 15 स्टैंजाज। तो इस वीडियो में हमने केवल फर्स्ट 5 स्टैंजा को जो है डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 और उससे नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 जो स्टैंजाज हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। ये पोएम जो है एक बैलेड है। बैलेड क्या है? बैलेड जो है वो पोएम, लॉन्ग पोएम जो किसी की ब्रेवरी की प्रेज में लिखी जाती है। तो थैंक यू।